ڈسکا میں کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بربریت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ کشمیر میں بھارت اور فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف سینکڑوں طلباء نے احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکاء نے اسرائیل اور بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مذمتی پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیری اور فلسطینی عوام پر مصالح بند کرائے، اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرے، فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کو روکا جائے۔ خطے میں بھارتی عزائم عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ نارنگ منڈی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، مویشیوں کا چارہ چوری کرنے پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ واقعہ نواحی علاقے اونچا پنڈ میں پیش آیا۔ ملزمان نواز، قاسم اللہ دتا اور نصر نے 27 سالہ نوجوان یاسین کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاحال ایک بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ واضح رہے کہ گاؤں کے معززین نے مقتول اور مخالفین میں صلح بھی کروا دی تھی۔ عارف والا میں پولیس کا ڈاکو کی گرفتاری کے لیے چھاپا فائرنگ، تھانے دار شدید زخمی ہو گیا۔ نواحی علاقے 68 ای بی ڈوگرہ والا میں سی آئی اے وہاڑی پولیس سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو ڈاکوؤں نے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ تھانے دار اشرف کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سعد آباد میں اینٹی ہنی ٹریپ سیل متحرک، فورٹ عباس کے 2 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ ہنی ٹریپ سے بچنے والے شہریوں میں ظہور احمد اور محمود احمد شامل۔ اب تک ہنی ہونے سے 230 شہریوں کو بچایا جا چکا ہے۔ دونوں شہری آسان کاروبار کے لالچ میں اغوا کاروں سے رابطے پر کچا روزان چاہ رہے تھے۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ نامعلوم مقام انجان افراد سے ہرگز ڈیل نہ کریں۔ اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں ڈکیتیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد روڈ پر پیٹرول پمپ لوٹ لیا۔ پولیس لائن سے 100 میٹر کے فاصلے پر خیبر پیٹرولیم کے عملے سے ڈاکو 1 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو واردات کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ چیئرمین انجمن تاجران حاجی فیصل نے آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی پی او سوار شفیع اللہ گنڈا پور کا مینگورہ شہر کا اچانک دورہ، ٹریفک اہلکاروں کی ڈیوٹی کا جائزہ لیا، ایمانداری سے فرائض کی ادائیگی پر جوانوں کو شاباش دی، کوتاہی اور لاپرواہی پر کئی اہلکاروں کو وارننگ جاری کی گئی۔ ڈی پی او سوات کا کہنا تھا کہ فرض کی ادائیگی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، عوام کی جان و مال کی حفاظت ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے والے اہلکار پولیس کا سرمایہ ہے، جبکہ غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ضرور کی جائے گی۔ چنیوٹ بھر میں اسپیشل مہم کے تحت سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 7 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس اور 100 لیٹر سے زائد شراب برآمد۔ ملزمان میں عابد، مظہر، پرویز، اصغر، عبدالحمید، طارق اور اسامہ شامل ہیں۔ ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا تھا کہ نئی نسلوں کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کے لیے آگاہی سیمینارز، عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے شہری پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اور بنو بکا کھیل میں 2 کمسن بھائی نہر میں گر گئے، ایک ڈوب کر جاں بحق، دوسرے کو زندہ بچا لیا گیا۔ عثمان اور اسماعیل دونوں بھائی، تعلق تحصیل بکا کھیل سے تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सदर मौलाना राशिद महमूद सोमरो सिंध अमन मार्च लेकर सांखड़ पहुंचे। कारकुनों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। सिंध अमन मार्च रैली से जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा अलामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि मैं पूरे सिंध की आवाज लेकर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ सांखड़ पहुंचा हूँ। यहाँ के अवाम सिंध अमन मार्च के साथ हैं। हम सिंध के किसी हिस्से को फरोख्त करने नहीं देंगे। सिंध में करप्शन का राज है, तालीम को बर्बाद करके रख दिया है। अस्पतालों में अद्वियात और डॉक्टरों की कमी है। सिंध में बच्चों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। हम किसी भी सूरत में सिंध को तबाह नहीं होने देंगे। नासिर वहीं दूसरी जानिब ठट्टा छत्तू चंद के रहायशियों का बासर शख्सियात की जानिब से गांव के रास्ते बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। ठट्टा से हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली सड़कें बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर और गैर मुकामी अफराद ने हमारी जमीनों के रास्ते बंद कर दिए हैं। दरखास्त देने के बावजूद पुलिस बासर शख्स के सामने बेबस है। नाज़रीन खबर शामिल करें झुड्डो से, जहां हुकूमती इकदाम के बावजूद मुकामी इंतजामिया जखीरान 200 और मुनाफाखोरों के सामने बेबस हो चुकी है। कोई अफसर एक्शन लेने को तैयार नहीं। आटे और चीनी के नरखों की उड़ान तो रुक गई, मगर उसके बावजूद मार्केट में आटे और चीनी के नर्ख कम न होने से जो कि गरीब आवाम से जुल्म है। घी और ऑयल के नर्ख मुसलसल नीचे आ रहे हैं, मगर उसका आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन अब रुख करें गुजरात का, जहां मोटरसाइकिल सवार रोड पर लगी गटर साफ करने वाली मशीन से टकरा कर जाँ बहक हो गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैनिटरी ब्रांच का अमला मशीनरी सड़क पर लगी छोड़कर 2 हफ्ते से गायब है। सैनिटरी ब्रांच के अमले की गफलत ने 28 साल वकास की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अहले इलाका ने मुतल्लिका अफसरान से कई बार मशीनरी हटाने का मुतालबा किया था। जाबक नौजवान के वर्षा ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सैनिटरी इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आपको बताते चले इस खबर के हवाले से कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत बिल पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे फलस्तीनी भाइयों के हक के लिए हुकूमत को 1 लाख रज़ाकार देने की पेशकश की गई है। अहले सुन्नत और वल जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की फतह जंग में सफदर हाशमी की रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा कि हम अमन पसंद और आइन और कानून की पाबंदी करने वाले हैं। इलेक्शन लड़ने और असम्बलियों में जाने वाले इंतहा पसंद नहीं हो सकते। फलस्तीन मसले पर OIC अक़वाम मुत्तहिदा और हमारी हुकूमत का सिर्फ जुबानी मज़म्मत करना काफी नहीं है। अमली तौर पर फलस्तीनियों पर होने वाले मसालिम को रोकना होगा। अगर हमारे नौजवान अफगानिस्तान जाकर अमरीका और रूस को शिकस्त दे सकते हैं तो फलस्तीन को सहूनी अफवाह से आजाद कराना कोई मुश्किल काम नहीं। OIC अक़वाम मुत्तहिदा और मगरिब की इंसानी हकूक की तंजीमें फलस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश है, जो एक शर्मनाक हरकत है। इस मौका पर मौलाना इफ्तिखार फारूकी, मौलाना जियाउर रहमान और जमात के जिम्मेदारान भी इस मौका पर मौजूद थे। नाज़रीन खबर शामिल करें कसूर से, जहां पक्की हवेली के करीब सरिये से लोड ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार में तसादुम पेश आया। खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के यूटर्न लेने के बायस पेश आया। जख्मियों में साजिद, जैनब, मुश्ताक और दीगर शामिल हैं।
नाज़रीन, खबर ये है कि सादकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल मुतहरिक हो चुका है। फोर्ट अब्बास के 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। हनी ट्रैप से बचने वालों में ज़हूर अहमद और महमूद अहमद शामिल हैं। अब तक हनी ट्रैप होने से 230 शहरियों को बचाया जा चुका है। दोनों शहरी आसान कारोबार के लालच में अगवाकारों से राबिते पर कच्चा रुझान जा रहे थे कि DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि सोशल मीडिया पर डाकू पर कशिश, कारोबार ऑफर्स और दिलकश लड़कियों की आवाज का जाल बिछाते हैं। नामालूम मकाम अनजान अफराद से हरगिज डील न करे। नाज़रीन, खबर शामिल करे खुशाब से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजरियाम पर आई है। मवेशी चोर गैंग के सरगने को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई SHO मोहम्मद अजमल फारूक ने की। मुल्जिमान में वहीद शाह, शहजाद, एजाज, अल्ताफ शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मवेशी चोरी के 12 मुकदमात दर्ज है। कब्जे से 30 लाख की नकदी और माल मसरूका बरामद कर लिया। SHO अजमल फारूक ने कहा कि अमन अमान के क्याम, जराइम के सदेबाब और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजलूम अवाम की फौरी और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करें मरोड़ से, जहां पुलिस ने मुनशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। SHO मतलूब अहमद कंबो ने कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए। चोरी शुदा माल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मरोड़ पुलिस ने मुनशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। SHO मतलूब अहमद कंबो ने कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए। चोरी शुदा माल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, खबर यह है कि जतोई, समारोह, झुड्डो, जोहराबाद में यौम सियाह कश्मीर पर रैलियां निकाली गई। मुख्तलिफ शहरों में भारतीय मसालिम को उजागर करने और कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए तकारीब का इनेकाद किया गया। जतोई म्यूनिसिपल कमेटी में जबरदस्त रैली निकाली गई। क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक ने की। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक का कहना था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हमवक्त कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीरी कभी अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में खुद को तन्हा तस्वर न करे। समारोह में भी कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। क़ियादत हेडमास्टर नरेश कुमार भरत, शौकत जिंदगी और दीगर ने की। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करे आरिफवाला से, जहां पुलिस का डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापा है। फायरिंग, थानेदार शदीद जख्मी हो गया। नवाही इलाके 68 EB डोगरावाला में CIA विहाड़ी पुलिस संगीन वारदातों में मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। थानेदार अशरफ को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट करते चले आरिफवाला से, जहां पुलिस का डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा है। फायरिंग, थानेदार शदीद जख्मी हो गया। नवाही इलाके 68 EB डोकरावाला में CIA विहाड़ी पुलिस संगीन वारदातों में मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। नासिर रुख करे नारंग मंडी का, जहां कत्ल की लड़साखेज वारदात हुई। मवेशियों का चारा चोरी करने पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाकया नवाही इलाके ऊंचा पिंड में पेश आया। मुल्जिमान नवाज, कासिम, अल्लादिता और नसर ने 27 साल नौजवान यासीन को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल एक भी मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। वाज़ेह रहे कि गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन ने चारा चोरी करने के बाद मकतूल और मुखालिफिन में सुलह भी करवा दी थी।
रेस्क्यू 1122 बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन को पंजाब भर में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाज दिया गया। अवार्ड सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने तकरीब के दौरान दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन के एजाज में बहावलपुर सेंट्रल स्टेशन में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब में सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन को पंजाब में भर में बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर उनके एजाज में रेस्क्यूज बहावलपुर की जानिब से रेस्क्यू 1122 के सेंट्रल स्टेशन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकिर हुसैन ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह अवार्ड तमाम स्टाफ की मेहनत का सिला है, और उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर इस बात का अज़म का आयद करते हैं कि मज़ीद जोश और जज्बे से मुल्क को कौम की खिदमत का फज़ीला अंजाम देंगे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन को रेस्क्यूज की जानिब से फूल पेश की गई। इसके साथ साथ ढोल की टाप पर रेस्क्यू एहलकारों ने भंगड़े भी डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके रिलेटेड हमारा जो तमाम आर्डर था, जो हमारी कंपटीशंस थे, वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले डिवीज़न लेवल पे हमारी स्क्रूटनी हुई, कमेटी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहावलपुर ने विन किया। और उसके बाद जो हमारे 9th लोग डिवीजनल हेडक्वार्टर पे सिलेक्ट हुए, उनकी कमेटी प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब लेवल पे हेडक्वार्टर बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज ए बेस्ट एमरजेंसी ऑफिसर 2022-23 डिक्लेयर किया गया और अवार्ड दिया गया, और मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो ये हमने डिस्ट्रिक्ट ने विन किया है, ये मेरी टीम एफर्ट्स थी। जो मेरी टीम के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ईमानदारी के साथ सिंसियरिटी के साथ कम्युनिटी की खिदमत की, और हम इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि आगे जो वक्त है उसमें बेहतर से बेहतर लोगों के लिए काम करें, ताकि हम लोगों को डोर स्टेप के ऊपर लोगों को जो हम फैसिलिटीज़ हैं वो दे सकें और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और मैं अपने लोगों को भी यही कहा है कि हमने मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और डेडिकेटेडली काम करना है, ताकि हम सर्विस की बेहतरी के लिए और लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काम कर सकें। कैमरा मैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, सर्दी की आमद है। भवाना में लंडा बाजार सच गया। गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रसाई और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए सस्ता बाजार पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि सस्ता बाजार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफिर अली। जी बिल्कुल, बुआना सर्दी की आमद के साथ साथ ही सस्ते बाजार सज गए। शहरियों ने सस्ते बाजार का रुख कर लिया, जहां पर शहरियों ने कपड़े, जर्सियां, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रिजाइयाँ, कंबल खरीदे। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में मार्केट की निस्बत हर चीज़ रियायत मिलती है। जो चीज़ वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये में मिलती है, यहाँ पर 1,000 रुपये में मिल जाती है। जो चीज़ बाजार में 400-500 रुपये में मिलती है, यहाँ पर 100 रुपये में मिल जाती है। इसलिए हम दिहाड़ीदार तबका के लिए सस्ते बाजार की सिनेमा से कम नहीं है। हमारा हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा है कि मज़ीद सस्ते बाजार लगाया जाए, ताकि आम शहरी वहाँ से ज़रूरियात की चीज़ें सस्ती खरीद सकें। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिमें कि सर्दी शुरू होंदी पई है, हर बंदे नूं सर्दी दी सहूलियात जरूरी हैं। गरीब आवाम नूं बाजार विचों इस महंगाई दे दौर विच हर चीज़ जदों महंगी मिलदी है, उन्हां वास्ते एक लंडे बाजार होना जरूरी है। जिमें कि हर बंदे नूं पता बाजार विचों कोई चीज़ है, कोई जर्सी, कोई रजाई तुलाई 4-4 हज़ार दी जुत्ती, कोई बूट अच्छा ले लो 3-4 हज़ार तो घट नहीं मिलता। ते इत्थे सहूलियात हैं कि वो जिहड़ी रजाई तलवाई या कोई जर्सी 3-4 हज़ार दी ओपन मार्केट चों बाजारों मिलनी है, वो इत्थों 700-800 हज़ार तक मिल जाती है, जो कि गरीब बंदा एक आसानी नाल खरीद सकता, अपना गुजारा चला सकता है। इसे तरह कोई जुत्ती है जिहड़ी बाहरों 2,000-3 हज़ार दी मिलती है, इत्थे 500-400 दा बूट मिल जाता है। ते इस तरह अपने आप नूं ढांप के सर्दी च गरीब आवाम गुजारा कर सकती है। गरीब आवाम वास्ते एक बड़ी अच्छी सहूलत है। इस वास्ते हुकूमत नूं इस तरह के बाजार हर शहर च लाने चाहिए, ताकि गरीब आवाम अपने आप को सर्दी से बचा सके। कार लगाते हैं, इनसे मुख्तलिफ सहूलियात लोगों को मुहैया की जाती हैं। जो चीज़ उधर 1500-2000 की मिलती है ना, इधर से हम 700-800 हज़ार, यहाँ गरीब लोग भी खरीदारी कर सकते हैं जो बाजारों में नहीं कर सकते। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करनी चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए और लोगों को और भी सहूलियात देनी चाहिए।
नाज़रीन, अहम खबर आपको दे कि जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला जारी है। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक में मुजाहरा जारी है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। गिरफ्तार अफराद में जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी शामिल है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अहम तरीन खबर है, गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक से मुजाहरे में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ सई से। जी तैमूर, बताइएगा, जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी, आज जमात इस्लामी इस्लामाबाद में गजा मार्च के हवाले से कश्मीर हाईवे पर अपने इंतजाम कर रहे थे कि इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा समेत मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। जमात इस्लामी कारकुनान ने कश्मीर हाईवे पर जो है मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की है। मियां असलम का मुतालबा है कि अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा को अपने कारकुनान समेत रिहा कर दिया जाए और पुलिस का जो रद्द-ए-अमल था उसी के खिलाफ जमात इस्लामी निकले हुए हैं। जमात इस्लामी का भरपूर रद्द-ए-अमल यह आया कि उन्होंने कश्मीर हाईवे को दोनों अतराफ से बंद किया है और टायर भी जलाए। इस्लामाबाद पुलिस जो है इस वक्त जमात इस्लामी के सामने बिल्कुल खड़ी है और उनके भी अपने मुतालबात हैं। उनका कहना था कि कश्मीर हाईवे को जो है फिर जो है खुला कर दिया जाए और इस्लामाबाद हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। और इसके साथ मजीद आपको बताते चलूं कि ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के रहनुमा नायब अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद मोहम्मद काशिफ चौधरी को पुलिस की तहवील में दिल का दौरा भी पड़ा है और अभी 7:45 बजे सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, जिसके बारे में आगाह करेंगे कि कल जो गजा मार्च है वो हर तरीके से हम करेंगे और एक भरपूर मिलियन मार्च होगा। जी ठीक है तैमूर यूसुफ से ये भी बताइएगा। ठीक है तैमूर यूसुफ से ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए क्या किया जा रहा है, कि किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अपारा चौक में जो है इस्लामाबाद पुलिस पहुंची हुई है और सामने बिल्कुल खड़े हैं इस्लामाबाद पुलिस और दूसरी जानिब जो है जमात इस्लामी के कारकुनान खड़े हैं। लेकिन जो ही इस्लामाबाद पुलिस कारकुनान की तरफ बढ़ गए तो जमात इस्लामी के जो कायदीन है वो आगे बढ़े और पुलिस से बातचीत की। इसके हवाले से जो बातचीत की कि मियां असलम को जो मियां असलम साहब हैं उन्होंने मुतालिबात किए कि हमारे अमीर को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस साइड पे हो गई और रास्ता खोल दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी फिर वक्त एक पुलिस की वैन जो है गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। गिरफ्तारियां किसी भी वक्त मुतवक्को है क्योंकि कारकुनान की जानिब से रोड दोनों बंद किए जा चुके हैं, टायर भी जला रहे हैं। इसके हवाले से पुलिस का जो रद्द-ए-अमल है वो किसी भी वक्त मुतवक्को है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा तैमूर यूसुफ सई के इस हवाले से कि जो अमीर इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी गिरफ्तारियों में शामिल हैं, इनकी गिरफ्तारियों के पीछे कौन से हकायक शामिल है जिसकी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया था कि 29 तारीख को हम गजा मार्च करेंगे, तो हकायक तो यही है कि अमेरिकन एम्बेसी की तरफ ये लोग पहुंचेंगे और इनका यही मुतालबा था कि हम अमेरिकन एम्बेसी की तरफ अपना जो मार्च है इसको लेके जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस और दीगर हुकाम जो है इसकी इजाजत नहीं दे रहे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस SSP सिटी ने बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को ये अहकाम जारी किए हैं कि कारकुनान को बिल्कुल भी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जानी नहीं देंगे। और अभी इसी वक्त बिल्कुल सामने मेरे इस्लामाबाद पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है इंतशार फैला हुआ है और इस्लामाबाद पुलिस आगे बिल्कुल बढ़ रही है। कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं और कश्मीर हाईवे पे आ चुके हैं। अपारा चौक से पुलिस अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। जी ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरह से काफ़ी जो है वो सेंसिटिव इशू क्रिएट हो रहा है, इस हवाले से क्या कहना है, और पुलिस और मुजाहिरीन में कोई झड़पों की सूरत हाल तो देखने में नहीं नजर आ रही, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झड़पें साथ साथ तो नहीं हो रही थी क्योंकि पहले इस्लामाबाद पुलिस साइड पे खड़ी थी,
لیکن اسلام آباد پولیس اور سیف سٹی جو پولیس ہے وہ ابھی آگے بڑھ چکی ہے. ابھی جو صورتحال ہے ابھی کارکنان منتشر ہو چکے ہیں. ابھی کشمیر ہائی وے پہ سارے کارکنان آ چکے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد پولیس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, وہ بھی کشمیر ہائی وے پہ آ چکی ہے. ان کے پاس جو ہے ڈنڈے ہیں. اسلام آباد پولیس بھی موجود ہے اور دوسری جو فورسز ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ. لیکن ایک جڑپ ہوا ہے, اس کے بعد ابھی کارکنان دوبارہ سے جو ہے جمع ہو گئے ہیں. پولیس بھی ایک جانب پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. کارکنان کے پاس بھی ڈنڈے ہیں اور ان کے پاس جو ہے پتھر بھی ہے, لیکن ابھی تک چونکہ اتنی بڑی جڑپ نہیں ہوئی کہ اس کو ہم بتا سکے کہ ابھی کوئی بڑا انتشار پھیلا ہو, لیکن چھوٹی سی جڑپ ہوئی ہے صرف. ٹھیک ہے تیمور, یہ بھی بتائیے گا کہ جو اسلام آباد کے امیر ہیں ان کو جو ہے جماعت اسلامی کے امیر جن کو دل کا دورہ پڑا ہے, ان کی حالت اب کس طرح سے ہے؟ وہ تشویشناک حالت میں تو نہیں ہے, یا کیا ان کی اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا؟ جی بالکل. نائب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد کاشف چودھری صاحب جو ہیں ان کی بھی امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رنداوا کے ساتھ جو ہے گرفتاری ہوئی تھی. گرفتاری کے وقت جو ہے انہوں نے اسلام آباد پولیس کو جو ہے کافی مطالبات پیش کیے تھے, لیکن ابھی اطلاعات کے مطابق, ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ امیر جماعت اسلامی جو نائب امیر ہے کاشف چودھری صاحب, ان پہ پولیس کے کسٹڈی میں ان پہ دل کا دورہ پڑا ہے. مزید میں نے ترجمان سے بات کی ہے لیکن کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی, اور اس وقت پولیس کی جانب سے جو ہے پتھراؤ جاری ہے بالکل, اور اسلام آباد پولیس نے پتھراؤ کیا ہے جس سے کارکنان منتشر ہو گئے ہیں اور کارکنان پیچھے ہٹ چکے ہیں. میڈیا کی گاڑیاں بھی کڑی ہیں, وہ بھی آگے چل چکی ہیں چونکہ پتھراؤ کافی تیز ہے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور دوسرے فورسز کی جانب سے ابھی شدید پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور ڈنڈے بھی برسائے جا رہے ہیں. کارکنان پیچھے ہٹ چکے ہیں, کارکنان بھاگ چکے ہیں. ابھی پارا چوک میں مکمل طور پہ پولیس موجود ہے. کارکنان کشمیر ہائی وے پہ سرینا چوک کی طرف بھاگ چکے ہیں, وہ نکل چکے ہیں چونکہ پولیس کا رد عمل کافی شدید تھا اور لاٹھی چارج بھی ہو رہی تھی اور ساتھ پتھراؤ بھی ہو رہا تھا. تو اسلام آباد پولیس نے جو ہے یہ کارروائی کی. کافی دیر بعد جو ہے اسلام آباد پولیس جو ہے. ٹھیک ہے تیمور, یہ بھی بتائیے گا کہ کارکنوں نے سری نگر, آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رپورٹر تیمور یوسف سعید تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے بتایا کہ کارکنوں نے سری نگر ہائی وے دونوں اطراف سے بند کر دی ہے. جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا یہ معاملہ تھا. جماعت اسلامی کے کارکنوں کا گرفتاریوں کے خلاف آپارا چوک میں مظاہرہ جاری ہے. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. کارکنوں نے سری نگر ہائی وے دونوں اطراف سے بند کر دی ہے. پولیس نے سرینا چوک سے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے. گرفتار افراد میں جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر نصر اللہ رندھاوا اور ترجمان عامر بلوچ بھی شامل ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ بھر میں اسپیشل مہم کے تحت سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 7 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. قبضے سے 2 کلو 400 لیٹر زائد شراب برآمد کر لی. ملزمان میں عابد، مظہر، پرویز، اصغر، عبدالحمید، طارق اور اسامہ شامل ہیں. ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا تھا کہ نئی نسلوں کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کے لیے آگاہی سیمینارز، عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے شہری پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. ناظرین خبر شامل کریں اوکاڑا سے، جہاں شہر اور گردنواں میں ڈکیتیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے.
फैसलाबाद रोड पर पेट्रोल पंप लूट लिया। पुलिस लाइन से 100 मीटर के फासले पर खैबर पेट्रोलियम के अमले से डाकू 1 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर मौके से फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। चेयरमैन अंजुमन ताजरान हाजी फैसल ने आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से ओकाड़ा शहर और गिरदनवा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर बराह रास्त जल्द से मिलिए चलते हैं। हाँ अलबत्ता जेबे खूब गरम। मैं आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेरे निगरानी यौम सियाह कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। रैली निकाली गई। शुरका ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हासिलपुर मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती के ज़ेर निगरानी यौम सियाह भरपूर अंदाज से मनाया गया और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। रैली सरकारी मुलाजमीन और मुख्तलिफ मकात में फ़िक्र समेत कसीर तादाद में बल्दिया मुलाजमीन और टीचर्स ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने की। रैली में स्कूल के तालिब इल्मों के अलावा शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गेट पर इख्तिताम पसीर हुई, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इंसानी जान की बेतौकीरी, खवातीन की बेहुरमती और बच्चों के बेनाई से महरूम करने के जो वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, उनसे इंसानियत पर ईमान रखने वाले लोगों को दुनिया भर में शदीद इज़्तिराब में मुबतला कर दिया है। उनका कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान ने कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के बरक्स और तकसीम बर-ए-सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतारी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत की सरपरस्ती में पटियाला की फोर्सेज अक्टूबर से कबल ही मकबूजा कश्मीर तैनात कर दी गई थी और 27 अक्टूबर हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जारहियत और बर्बरियत का आगाज होता है। कश्मीरी अवाम ने 1947 से लेकर आज तक एक दिन के लिए भी हिंदुस्तानी कब्जा कबूल नहीं किया। इस मौके पर मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। दूसरी जानिब डीपीओ सवाद शफीउल्लाह गंडापुर का मैंगोरा शहर का अचानक दौरा है। ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटी का जायजा लिया। ईमानदारी से फराइज की अदायगी पर जवानों की शाबाश दी। कोताही और लापरवाही पर कई एहलकारों को वार्निंग जारी की गई। डीपीओ सवाद का कहना था कि फर्ज की अदायगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी तरजीहात में शामिल है। ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देने वाले एहलकार महकमा पुलिस का सरमाया है। नाज़िम खेल के मैदान से आपको खबर दे, जहां सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दी है। आपको बता रहे हैं खेल के मैदान से सनसनीखेज खबर है इस हवाले से कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दी है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दी है।
अफसोसनाक खबर शामिल करें बन्नू से, जहां बका खेल में 2 कमसिन भाई नहर में गिर गए। एक डूबकर जाँ बहक हो गया, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। उस्मान और इस्माइल दोनों भाई हैं। ताल्लुक तहसील बका खेल से था। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नासिर खबर यह है कि डायरेक्टर सलाह सवार डॉक्टर जान मोहम्मद की निगरानी में बरीकोट में जमींदारों को ट्राइको ग्रामा के अफादियत के बारे में आगाही देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जमींदारों ने भरपूर शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत लॉयर सवार डॉक्टर जान मोहम्मद का कहना था कि ट्राइको ग्रामा टमाटर की हिफाजत के लिए दिया गया है, एक कार्ड है। किसानों का इसमें बहुत फायदा है। कार्ड के इस्तेमाल से किसानों के टमाटर का फसल कीड़ों से महफूज रहता है। खबर शामिल करें डस्का से, जहां कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर बर्बरियत के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। कश्मीर में भारत और फलस्तीन में इसराइल के मजालिम के खिलाफ सैकड़ों तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने इसराइल और भारत के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ मजम्मती पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बरादरी कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम पर मसालिब बंद कराए। अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत देने का वादा पूरा करे। फलस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी को रोका जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करें जलालपुर भटिया से, जहां गुजरावाला रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। शिनाख्त मनसब के नाम से हुई है। मनसब गवर्नमेंट हाई स्कूल में दर्जा चहारम का मुलाजिम था। ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया। चिन्योट भर में स्पेशल मुहिम के तहत समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 7 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चर्स और 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली गई। मुलजिमान में आबिद, मजहर, परवेज, असगर, अब्दुल हमीद, तारिक और उसामा शामिल हैं। DPO चिन्योट का कहना था कि नई नस्लों को मुनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए आगाही सेमिनार्स, अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए शहरी पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। नासिन खबर शामिल करें पाक वतन से, जहां कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। शहरी समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के खूब नारे लगाए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती। कश्मीर पर 76 साल से जारी भारत के कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान कौम यकजुबान। पाक पतन में भी यौम सियाह कश्मीर के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है, कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कश्मीरियों के राइट को उन्होंने खत्म करते हुए उस पर कब्जा किया। आज इस बात का यौम सियाह हम इसलिए मना रहे हैं कि लोगों को पैगाम दे सकेंगे पाक पतन की अवाम ज़िला इंतजामिया की लीडरशिप में हम वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़ी है। शुक्रिया। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी तंजीमें और शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। कोशिशों और इनके सलब शुदा जो हकूक हैं उनकी हमायत करते हैं, उनके साथ हैं। कश्मीरियों के हर मुश्किल में हम उनके साथ खड़े हैं। हम जानी और माली हर तरह की इमदाद देने के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। कश्मीरी भाई जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। अक़वाम आलम और OIC और पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है।
रैली के शुरा हाथों में एहतजाजी कतबे थाम करके आलमी बरादरी की भारतीय मुजालम पर खामोशी को कड़ी तनकीद। मरवत से जहां सिटी हस्पताल में दर्जा चहारम यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत ज़ली सदर अर्जुमन खान ने की। ज़ली जनरल सेक्रेटरी इरफानुल्लाह, सदर सराय नौरंग सफ्तर खान ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन को मुस्तकिल करके जीपी फंड और पेंशन का हक दिया जाएगा। दीगर मुलाजमीन की तरह टाइम स्केल दिया जाएगा। अगर हुकूमत ने मुतालबात पर गौर न किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको अपडेट करते चले लकी मरवत से, जहां सिटी हस्पताल में दर्जा चहारम यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत ज़ली सदर और अर्जुमन खान ने की। ज़ली जनरल सेक्रेटरी इरफानुल्लाह, सदर सराय नौरंग सफ्तर खान ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन को मुस्तकिल करके जीपी फंड और पेंशन का हक अदा किया जाए। दीगर मुलाजमीन की तरह टाइम स्केल दिया जाएगा। अगर हुकूमत ने मुतालबात पर गौर न किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, खबर यह है कि जमात इस्लामी मर्दान के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और नुमान यूसुफ ने भरपूर खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त है। हम फ़लस्तीनी अवाम पर सहूनी बर्बरियत के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। किबला अव्वल पर सहूनियों का नाजायज़ कब्जा अब मुसलमानों को गैरत दिलाने के लिए काफी है। नासिन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मियां चन्नू में हजारों लीटर जाली दूध की तैयारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 5000 लीटर तैयार शुदा जाली दूध, 400 लीटर गाढ़ा महलूल, 125 किलो वे वाटर, 100 लीटर खुला ऑयल तल्फ कर दिया गया। 2500 किलोग्राम पाउडर, 1200 लीटर खुला ऑयल, केमिकल ड्रम्स और मशीनरी जब्त कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी मियां चन्नू में FIR दर्ज करवा दी गई। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों पर हर किस्म का घिनौना मंसूबा नाकाम बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि दूध एक बुनियादी गजा है, जालसाजी करने वाले अवाम की दुश्मन है। सेहत दुश्मनों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। नासिन, खबर शामिल करें सखर से, जहां IBA यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का बाकायदा आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि 2 रोज तक अदबी मेला जारी रहेगा। अदबी मेले में अदबी सकाफत, तालीमी, तफरीही और जदीद टेक्नोलॉजी बाबत प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। तकरीब में अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, मुनव्वर सईद, मेयर अरसलान शेख, सले काउंसिल चेयरमैन कमील हैदर शाह ने भरपूर शिरकत की। नासिन, खबर शामिल करें नौशेरा से, जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मौसमी तब्दीली और हमारे माहौल पर पड़ने वाले असरात के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे माजिद खटक। दुनिया भर के मौसमी माहौलियात में तब्दीली से हमारे माहौल पर पड़ने वाले असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ हमारे मुल्क के मौसमों की तब्दीली रोनुमा हो रही है, बल्कि हमारी ज़िंदगी पर मनफी असरात भी पड़ने लगे। इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम नौशेरे के एक निजी होटल में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट को ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से भी देखता है कि क्लाइमेट की जितनी भी फाइनेंसिंग है उसमें ट्रांसपेरेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये 3 सतह पे होती है। एक तो जो हमारे पास कानून साजी है उसमें ये यकीनी बनाना है कि जो प्रोविंशियल
और फेडरल और मकामी सतह की जो क्लाइमेट पॉलिसीज हैं उनमें हम एंटी करप्शन स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाएं। दूसरा ये है कि जो मकामी सतह पर लोग हैं, कम्युनिटीज, उनको मोबिलाइज और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि ताकि जो भी क्लाइमेट के हवाले से डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो अखराजात हों, चाहे वो बजटरी एलोकेशंस हो, उनमें उनकी राय शुमार होना। तो आज बेसिकली हमने ये सोशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कम्युनिटीज को इन्फॉर्म किया है कि किस तरह वो अपनी राय को जो है क्लाइमेट डिसीजन मेकिंग में यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि नौशेरा एक हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। 2022 के जो फ्लड्स हैं उसमें काफ़ी नुकसानात हुए। तो आज ये बेसिकली कम्युनिटी के लोग और सिविल सोसाइटी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ मिलकर हमने ये कम्युनिटी डायलॉग किया था, जिसका अनुमान क्लाइमेट जस्टिस है और क्लाइमेट एक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना। सेशन का मकसद माहौलियाती तब्दीली के लिए सूबाई और नेशनल सतह पर कानून साजी को यकीनी बनाना और मुकामी सतह पर लोगों की मुस्बत तजावीज़, शरीकदारी और आगाही देना है, ताकि बजट और दीगर अखराजात में शफाफियत के साथ जवाबदेही और साथ अवामी राय को बरूए कार लाई जाए, ताकि काम करने वाले इदारे एंटी करप्शन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जाए। माजिद खाटक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, नौशेरा। के जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक में मुजाहरा जारी है। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस ने शेलिंग के बाद श्रीनगर हाईवे को खाली कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। गिरफ्तार अफराद में जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी शामिल हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक में शदीद मुजाहरा जारी है। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से भरपूर जवाब देते हुए पुलिस एहलकारों पर पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस ने शेलिंग के बाद श्रीनगर हाईवे को खाली कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अफराद में जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी इस मुजाहिर में शामिल हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक में शदीद मुजाहरा जारी है। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से भी भरपूर जवाब देते हुए पुलिस एहलकारों पर पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस ने शेलिंग के बाद श्रीनगर हाईवे को खाली कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ से। जी तैमूर, बताइएगा अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, झड़पों का क्या सिलसिला जारी है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। वक्त जो है अपारा चौक में जो जमात इस्लामी की जानिब से कारकुनान की जानिब से एहतजाज जारी था और इस्लामाबाद पुलिस भी और दूसरे जो फोर्सेस हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से तो मुज़ाकरात जारी थे। जमात इस्लामी के जो क़यादत है उनके साथ ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि जब तक आप अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा साहब को, तर्जुमान इस्लामाबाद जमात इस्लामी आमिर बलोच साहब को आप जब तक रिहा नहीं करते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा को, तर्जुमान आमिर बलोच को और नायब अमीर काशिफ चौधरी साहब को हम रिहा करेंगे। इस हवाले से कारकुनान पीछे हट चुके थे, लेकिन जो ही मगरिब की अजान हुई और मगरिब की नमाज के लिए कारकुनान खड़े हुए तो पुलिस की जानिब से उन पर हमला हुआ। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग भी शदीद हुई। कारकुनान की तरफ से भी जो है उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, पथराव किया गया था और दूसरी जानिब पे जो पुलिस थी और फोर्सेस थी उन्होंने भी जो है काफी लाठीचार्ज किया, पथराव किया और शेलिंग की शदीद शेलिंग शुरू थी, जिसकी वजह से कारकुनान मुंतशिर हो गए और मुंतशिर होने के बाद कारकुनान कश्मीर हाईवे पे चले गए। कश्मीर हाईवे से वो अपना जो मरकजी दफ्तर है जमात इस्लामी मिलोड़ी में, वहां पे कारकुनान जमा हो गए हैं। इस वक्त कश्मीर हाईवे को खोल दिया गया है दोनों तरफ पे, चूंकि जमात इस्लामी के कारकुनान ने हाईवे को बंद कर दिया था। अभी ट्रैफिक की बहाली वो शुरू हो चुकी है, ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, पुलिस भी वहां पे मौजूद है सिग्नल्स पे और कारकुनान जो है वो मिलोड़ी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ठीक है तैमूर, ये भी बताइएगा कि आला हुकाम की जानिब से वाकये का क्या नोटिस लिया गया है और झड़पों का सिलसिला कब तक इस हवाले से जारी रहेगा?
जी अभी जो है जमात इस्लामी की जानिब से चूंकि ये अपडेट मिली थी कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब 7:45 बजे यहाँ इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर स्पोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के सामने मीडिया को ब्रीफ करेंगे गजा मार्च के हवाले से कि कल गजा मार्च मिलियन मार्च जो है हमारा इधर 2 बजे से शुरू होगा। लेकिन उस हवाले से अभी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से कोई खबर नहीं आई, चूंकि हमें जो खबरें मिलती है वो तर्जुमान जमात इस्लामी इस्लामाबाद की जानिब से मिलती है। इसमें तर्जुमान जमात इस्लामी आमिर बलोच भी गिरफ्तार हैं। उनका सिर्फ एक मैसेज हम तक पहुंच चुका है, चूंकि जेल में उनको सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल दी गई। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूं, लिहाजा आप लोग अपने तौर पे जो है वो आवाम को ब्रीफ करें और इस मिलियन मार्च के हवाले से आप ब्रीफ करें। मियां असलम साहब का कहना था कि हम किसी भी हवाले से ये मिलियन मार्च करेंगे, पुलिस जितना भी हमें रोक ले। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से और SSP जो सेफ सिटी है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो है मिलियन मार्च नहीं होगा। उन्होंने इनकार कर दिया, मिलियन मार्च आप नहीं कर सकते। अभी इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का मौक़िफ़ आएगा, शायद वो पूरे पाकिस्तान को भी कॉल दे दें इस हवाले से और पूरी आवाम को जो है वो अपना एक मैसेज जारी करे कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। तो इस हवाले से मजीद अपडेट मुतवक्को है, लेकिन वो अभी तक जो है इसके बारे में कोई इत्ला नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब इसके बारे में अपडेट करेंगे। ठीक है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है इस हवाले से अपडेट करेंगे। आप बता रहे थे तैमूर इस हवाले से हमारे रिपोर्टर तैमूर यूसुफ सही तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का ये मामला है। जमात इस्लामी के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ आपारा चौक में शदीद मुजाहरा जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पथराव का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने शेलिंग के बाद श्रीनगर हाईवे को खाली कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच भी इस हवाले से मुजाहरे में शामिल है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर और खैबर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने, स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जारी मुहिम मजीद तेज करने के लिए CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर की जेर सदारत अहम बैठक हुई। DPO खैबर सलीम अब्बास कलाची, SSP कोऑर्डिनेशन खदीजा उमर, SP रूरल डिवीजन जफर अहमद खान, SP सदर डिवीजन अब्दुल सलाम खालिद, SP फकीराबाद उसामा अमीन शीमा भी इस मौका पर मौजूद थे। CCPO ने मीटिंग के दौरान क्राइम चार्ट का तुकाबली जायजा लेते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई जारी है। कराची के इलाके अजीजाबाद से वारदातों में मुलविस फैजान उर्फ भोरी ग्रुप के मुल्जिम जोहान उर्फ सावल को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 99 पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के लगे अजीजाबाद में टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलव्वस फैजान उर्फ भूरी ग्रुप के मुल्जिम जोहान उर्फ सावल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्टल, 2 अदद छीनी हुई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुल्जिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों तारक रोड, शारा फैसल, मंजूर कॉलोनी, जमशेद रेत, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, सदर और काला पुल में शहरियों से लूटमार करने, स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की 800 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने 10 अफराद को कत्ल करने का भी एतराफ किया है। मुल्जिम ने अपने दीगर साथियों के हमरा जहांगीर रोड पर फलक कार शोरूम के मालिक से मबलग 13 लाख रुपए नकदी और 1 अदद 9mm पिस्टल छीनकर फरार हो गए थे, जो कि मुल्जिम के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। मुल्जिम ने चांदनी चौक पर वाक़े केसर बेकरी में डकैती की वारदात भी की, जिसमें मुल्जिम को CCTV फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिम आदि मुजरिम है और मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।
मुलजिम के दीगर साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को बिमा असला और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गयूर कश्मीरी बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनने के बजाय भारत की तरफ से इंसानी हकूक की पामाली का नोटिस ले सफीर पाकिस्तान फैसल नियासी का यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से सिफारत खाना पाकिस्तान अबू ज़ैबी में तकरीब से खिताब है। कहा कि इस वक्त और मसला कश्मीर के हल में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि गयूर कश्मीरी बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनने की बजाय भारत की तरफ से इंसानी हकूक की पामाली का मुकम्मल नोटिस ले सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज का यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से सिफारत खाना पाकिस्तान अबू ज़ैबी में तकरीब से खिताब है। कहा कि इस वक्त और मसला कश्मीर के हल में अपना भरपूर किरदार अदा करे। तकरीब में अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजलूम कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती है। रेंजर्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस स्मगलर्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। गैर कानूनी स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर सिंध और कस्टम्स इंटेलिजेंस का इंसदाद स्मगलिंग के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेंजर सिंध और कस्टम इंटेलिजेंस ने खुफिया इतला पर भारी नफरी के हमरा स्मगलिंग के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन ऑपरेशन करते हुए यूसुफगोट बल्दिया टाउन कराची में वाक़ खुफिया गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत का भारी मिकदार में स्मगल शुदा कपड़ा, पीवीसी प्लास्टिक, ईरानी सिरामिक टाइल्स, कराकरी, सिगरेट, खुश्क दूध, छालिया, खुर्दनी तेल, खोपरा, शैम्पू, साबुन और मुख्तलिफ नौइयत की अशिया खुर्दनोश कब्जे में ले ली। बरामद शुदा गैर कानूनी सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए 20 ट्रकों के जरिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है, जबकि गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी मोहम्मद अशरफ ने टीम के हमरा गुमशुदा 16 साला फरीहा बीबी और 28 साला इरम बीबी को तलाश करके वर्सा के स्पुर्द कर दिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग जैगम अब्बास के मुताबिक लवाहिकीन ने इगवा का मुकदमा थाना जनूबी छावनी दर्ज करवाया था। गुमशुदा बच्चियों को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश किया गया। गुमशुदा बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर वर्सा ने पुलिस टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने पुलिस टीम को शाबाश दी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।